I'm sorry. Yes, now I started. Thank you. So now you draw a graph, maximum dye density into water content. Yes, Gaurav, very good. Gaurav has did. And what is OMC, beta? Gaurav has did. What is the value of OMC? Yes, very good. करो प्लीज। देखिए, मैं सिलेबस कंप्लीट करना, ये खत्म करना, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस आराम से होता है, ये आप सीखो, करो, ड्रॉ करे तो ही मालूम होता। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये ग्राफ और ऐसा ही क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में मिलता है आपको। हर क्वेश्चन पेपर में एक या दो बार, पिछले 10 साल के 20 क्वेश्चन पेपर आप निकालो तो एक या दो बार ही आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिसमें नहीं है। Every times these questions are going to be asked. So you draw the graph and from that you get what is OMC and what is MDD. So draw the graph and get the values of OMC. I think the OMC is here, it is given. OMC is 14.5 and MDD is 1.84. तो आपके आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते, और ग्राफ उतारने में या मतलब पेंसिल आगे पीछे होने में ऐसा मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं आता। तो इन द बुक दिस क्वेश्चन इज OMC is 14.5%, 14.5%, whereas MDD is 1.84 gram per centimeter cube, 1.84 gram centimeter cube. Take down the answer. आपका आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद हमको बनाने हैं व्हाट इज द 100% सैचुरेशन लाइन एंड व्हाट इज द 80% saturation line. He has asked us to draw the 100% saturation line and 100% 80% saturation line. So what is a 100% saturation line? 100% saturation line is nothing but 100% saturation line is nothing but zero air wide line. 100% saturation line is nothing but zero air wide line. So how to get 100% saturation line? I told you, this is the formula for 100%. G gamma W by 1 plus WG by S. But for 100% saturation line, degree of saturation S should be taken as 1. So 2.65 गामा डब्ल्यू की जगह रो डब्ल्यू भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप 1 ले लो। 1 प्लस 0.08 वाटर कंटेंट है, 2.6.5 इंटू 1 है, तो ये पहले वाटर कंटेंट के लिए आपको वैल्यू आएगा 2.186। उसी तरह अगला वाटर कंटेंट ले लो, इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, ये एक सेट मिल जाता आपको। अब सवाल ये उठता, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 100% सैचुरेशन लाइन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 80% सैचुरेशन लाइन? So for 80% saturation line, the formula remains same. So G gamma W या rho W ले लो, G rho W 1 plus water content G by S की जगह, तो यहाँ S की जगह क्या करना, 1 की जगह 0.8 लेना, क्योंकि ये 80% लाइन है। If it would have been 90% line, then you have to take 0.9.
Like this you have to take. So if it is 80% line, you take 0.8. If it is 90% line, you take 0.9. If it is 70% line, you take 0.7. If it is 100% saturation line or zero air wide line, you have to take S is equal to 1. So 2.65 into gamma W or OW is 1, 1 plus 0.08 into 2.651. This calculation you make for every water contained for 100% line, and instead of S is equal to 1, you take 0.8. This is for 80% saturation line. This is for 80% saturation line. Like this, you make the calculations for every water content. You make the calculation for every content and give me the reading. This is for 100% saturation line and this is for 80% saturation line. Answers I am showing you. Please you do it and get it whether these are right or whatever you are doing. At least you are followed or not. That I want to know. You have followed it or not? Please tell me. So this is rho D at 100% saturation line. This is rho D at 80% saturation line. So for every water content, for 8%, 11.5%, 14.5%, 17.5%, you calculate all these things and you do it. Do it please and you calculate all. If you have any doubts, please ask. After calculating these values for every water, मतलब आप कर्व भी बना सकते हैं और एक कर्व बनाने के बाद 100% सैचुरेशन लाता है, कॉम्पैक्शन कर्व के बाहर जाता, जबकि 80% सैचुरेशन यहाँ लाता. देखिए 100% सैचुरेशन लाइन एक इमेजिनरी लाइन है क्योंकि कॉम्पैक्शन में 100% सैचुरेशन हो नहीं सकता, जीरो एयर्स नहीं बन सकते, इसलिए कर्व के बाहर जाता जनरली. दैट इज 100% कॉम्पैक्शन साइन एंड दिस इज 80% saturation line. This line is 80% saturation line. So please make the calculations and draw it. अब आपका काम है, everything I have shown you. आप चुप बैठ के सिर्फ अटेंडेंस लेके जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है. अटेंडेंस तो मैं आपको एंड में आने के बाद भी दे रहा हूं. अटेंडेंस का कोई रोल नहीं है, इसका कोई काम नहीं है. The thing is you have to understand the concept and practice it, read it. और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये बात, ये चैप्टर उनके लिए बहुत अच्छा है जो लिमिटेड पढ़ते, जिनको सिर्फ पास होना है. तो ये कॉम्पैक्शन चैप्टर और इक्वल वेटेज है. बच्चे सो जितने 5 यूनिट्स है उसमें जितने मार्क्स आते हैं इसको भी उतने ही मार्क्स आते. तो 6 यूनिट है आपको, तो मेरे ख्याल से आपका पेपर 70 का रहता ना. तो देखो 6 यूनिट है, 70 है, बोलते देखो 12-13 मार्क्स में जाते आपको, 12 से कम 72. तो 12 मार्क्स आप इस चैप्टर से ले सकते. 28 में से 10 तो कम से कम देता. 10-12 मार्क्स जब आपको एक ही चैप्टर से मिल जाते हैं 28 में से, तो पास होने के लिए ये बहुत है. और इसमें भी सिलेबस इज लिमिटेड. अगेन एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आज करा रहा हूं. पहले कल एक कराया, आज 2 कराया. नेक्स्ट क्लास में तो अलग टाइप के प्रॉब्लम कराऊंगा मैं आपको. तो इसी के ऊपर एक पूछता, क्या पूछता क्वेश्चन में, मास देता, वाटर कंटेंट देता करके आपको कॉम्पैक्शन कर्व बनाना. कॉम्पैक्शन कर्व के लिए रो डी चाहिए. पहले रो निकालो, फिर रो डी निकालो, कर्व ड्रा करो, रो डी वर्सेस वाटर कंटेंट. और बेल शेप्ड कर्व आता, उसका मैक्सिमम टिप पॉइंट ले लो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लाइंस ले लो, यू विल गेट ओएमसी एंड एमडीडी. ये पहला पार्ट पूछता. दूसरा पार्ट क्या पूछता, व्हाट इज द जीरो वाइड लाइन और 100% सैचुरेशन लाइन. उसके लिए भी मैं आपको कैलकुलेशन कैसा करना है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी दिया. तो वो डेंसिटीज आते हैं आपको इस फॉर्मूले में रखने के बाद. S इज इक्वल टू 1 लेना. तो वाटर कंटेंट वर्सेस ये ड्राई डेंसिटी, अगर से आप एक कर्व बनाए, सो यू आर गोइंग टू गेट वन स्ट्रेट लाइन.
how this formula comes. See here, for 80, whether it is 80% or 100%, whether it is 80% or 100%, formula is same. Sonali, this is the formula for 80%. That only I am telling beta. You see here, formula is same. Gamma D is equal to G gamma W और रो गामा W डिवाइड बाय 1 प्लस WG बाई S. W यहाँ पर क्या एक्चुअली E है और E की जगह हम क्या लिख रहे हैं, WG बाई S. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, 100% है तो S इज इक्वल टू 1 लेना. अगर से 80% है तो S की जगह 0.8 लेना. 90% पूछा तो S की जगह 0.9 लेना, या बाकी का सब सेम है. समझ में आ रहा नहीं आपको? S की जगह 1 लेना, 80% है तो 0.8 लेना. यही रख के मैं एक रीडिंग का कैलकुलेशन किया होगा मैं 80% के लिए. देखो 2.65 इंटू 1, हाँ ओके, हाँ 2.5 इन 6.21 1 प्लस 0.08 WG बाई S. तो 100% सैचुरेशन में लाइन में S इज इक्वल टू 1 बनता बेटा, और यहां पर इट इज 80% और 0.8. is 80% or 0.8. So 2.65 divided by all these things you do. So you will get gamma rho D at 80% is 2.094 gram per cc. 2.094 gram per cc. Like this you will get it. Like this you will get the things. Got it? So please calculate and draw the line. So after this break is there, then I will take one more problem, small problem I will take and take the attendance in the next class.